लॉकडाउन लाइव सीजन 2 सेक्शन 23 आप सभी का हार्दिक स्वागत है और बिफोर आई बिगिन द सेशन फॉर द डे आई वुड लाइक टू इंश्योर कि आप सब लोग अपने घर पर है, सेफ है, स्वस्थ है और लॉकडाउन रूल्स को फॉलो करें। सो गाइज हम लोगों ने इस लॉकडाउन को क्रिएटिव बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए अब तक अराउंड 36 डिफरेंट टॉपिक्स को केटर किया है और आज का ये लास्ट सेशन है फॉर दिस सीजन एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना अप्रिशिएट किया सो दैट दीज सेशंस कुड गो ऑन. And today I am really honored and privileged to have such wonderful, distinguished people in the show today. And we are going to cater to the medical field basically. And देखते हैं कि आज क्या होने वाला है. तो आज मेरे साथ हैं Dr. Pankaj Gupta, President of IIHMR University. Welcome you, sir. Thank you. Then we have Mr. Kamal Narayan. He's the CEO of IHW Council. I welcome you, sir. Thank you. Thank you so much. And of course, we have the very pretty and intelligent Anvita Mukherjee. She's from Queen Mary University, UK. Hi, welcome to the show today. Thank you. It's an absolute honor. So it's my honor and privilege to have such amazing people today. And thanks for taking out your valuable time and joining and connecting with us today. So the topic for today is let's understand COVID-19 from experts' point of view. We know this thing that the entire world is facing something very uncertain. This pandemic has affected each one of us, like whether it's an Indian or whether people abroad, all around the globe. People are anxious, they don't know what's happening around. तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कुछ इनसाइट्स आप सबसे और आप लोगों का टेक जानने वाले हैं इस टॉपिक पे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनल जर्नीज एज वेल. सो मैं सबसे पहले पंकज सर से जानना चाहूंगी कि जो आपकी जर्नी रही है आज तक अपनी प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में, किस तरीके की रही है एंड हाउ इट हैज बीन. देखिए जर्नी तो एक अलग-अलग टाइप की होती है. दैट यू हैव known me for a long time, but at this time of COVID, as you know that keeping your mental cool and living in now is very, very important, because when Buddha used to say this too shall pass. So we have seen the height of lockdown when people were getting very upset कि अब क्या होगा, कैसे होगा, lockdown 1 to lockdown 5. And now we are at the unlock 1. So anyway, life is moving on. There were people who were saying, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. But the best thing is that when we take responsibility for ourselves and also for the people around us, and also feel, grateful for the people who are contributing in our life. And I feel very happy that the concept of gratitude has been taken, and I was just sharing with you that Kamalji, who is a leading light in this field and chairman of ISW Council, just 2 days back I was talking to him and I shared that he is going to make a very big program for the doctors. So that is the reason I requested him that why don't you join, because the bigger mind that think alike. So I was very, very fascinated when you shared with me that I'm planning to do this way. And then I know Anvita ji, she is also a very wonderful and a creative person and has been working on that. So I think we all will be sharing some light on these issues and, being centered in ourselves, accepting the situation the way it is, rather than thinking that this should be this way, it is something wrong here. If you look at it this way, then we will see that we can convert into an opportunity rather than only the challenge. So this is what I would like to say, Nishi. जैसा कि आपने कहा कि I also affirm and strongly believe in this thing that when like-minded people meet, great things automatically happen. So I'm sure that something very constructive and very great is going to happen from this discussion as well. And now coming on to Kamal sir, I would like to know from your side that how your journey has been and कैसा रहा अब तक का सफर. Thank you so much, Shreya, for inviting me on this discussion. And it's always a pleasure to share any dais or any screen with Pankaj ji.
and I can see that you have a good followers. People look forward to your show to know different things, and it's wonderful that you have done. You said 46 plus shows during this lockdown. So It's 36 46 भी कर लेंगे, अब आपके मुंह से निकल गए तो फिर 46 के आगे भी जाएंगे. wonderful, wonderful. You do 100 shows and do invite us again on 100th of show then. It will be my That will be your century. So श्रेया, आपने पूछा कि मेरी जर्नी कैसी रही है, तो मेरी जर्नी बहुत मॉडेस्ट जर्नी शुरू की थी मैंने, और मैं एक जर्नलिस्ट था. आई स्टार्टेड माय करियर विद हिंदुस्तान टाइम्स. मैं क्राइम रिपोर्टर होता था तब, और क्राइम रिपोर्टर के तौर पर पुलिस स्टेशंस में, पोस्टमार्टम हाउसेज में और हॉस्पिटल्स में जाने का काम होता था मेरा. और वहां से हम लोग स्टोरीज निकालते थे कि एक डेड बॉडी से एक स्टोरी निकलती थी कि वो क्या करता था, वो कैसे मरा, और उसके पीछे क्या छूट गया, और क्या वो अचीव कर सकते थे लाइफ में. तो वहां से जर्नी शुरू होकर के मैंने मीडिया के कई सारे इम्पोर्टेंट जो हाउसेज हैं वहाँ पर काम किया. मैं आई वॉज जर्नलिस्ट विद UNI, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया. देन आई वर्क विद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया for quite some time, and then I worked with Deccan Chronicle Group. Or 2010 onwards, I started our first entrepreneurial journey in the form of Teamwork Communication Solutions Private Limited, which is now a leading company in the area of health communication. और since मेरे जर्नलिज्म के डेज में also I used to cover healthcare primarily. So that interest of healthcare continued with me, and we did a lot of work in the healthcare communication, spreading awareness on diseases, cancer, hepatitis, many other diseases, HIV, TB, mental health. Pankaj works in that area extensively, and also a lot of work in the area of education. उसके बाद पिछले 5 सालों से I am committed towards doing a lot of work which is not for profit work in the area of health, and which we do under Integrated Health and Wellbeing Council, ISW Council. This is an institution which promote preventive and promotive health, and we are of firm opinion that अगर किसी को साफ हवा, अच्छा खाना और अच्छा पानी मिलता रहे तो उसकी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे. और हमें जो डिपेंडेंसी है हॉस्पिटल्स में जो है हेल्थ केयर पे, वो कम होगी. वी विल बी हेल्थियर सोसाइटी. फिर उसके बाद बहुत जरूरी है कि हमारे पास बहुत हेल्दी हेल्थ केयर सिस्टम भी हो, जिसमें हमें अच्छी मेडिसिन उस दाम में जिसमें हम अफोर्ड कर सकते हैं. Something which is affordable but quality can reach us. We can have healthcare which can support us, which is under my reach, but at the same time provide me equitable care in a quality manner. So that is where the whole philosophy we work around. और पिछले लॉकडाउन के टाइम पे अगर बोले तो लॉकडाउन पे भी हमने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं. आपने 36 शोज किए हैं, हमने भी शायद इससे ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड शोज किए. ब्यूटीफुल. जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आते रहे. उन्होंने बताया लोगों को कि कैसे घर पे बैठे रह करके भी दे कैन मेक श्योर दैट देयर हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ. Exactly. Very essential. So that was the gap we were bridging, and that's how the journey is continuing, and we will go beyond this, and maybe what is I would like to ask you one thing here, that what is more favorite to you, like being a crime reporter or what you're heading right now? I can very well say that I love what I do at any point of time. That's and fortunately I am doing what I love these days. that is the real quality of a leader, that जो जब जहाँ है जैसा है वही पसंद है और compassionately उसको करते जाइए. So that's the mantra to growth, and that definitely that's why we have successful people like you. Now coming on to Anvita, आप बताइए कि आपका सफर कैसा रहा है, how your journey has been?
Well, first of all, what an absolute honor to be sharing screen space with Pankaj sir and with Narayan sir, and thank you, Shreya. So, if you want me to speak about my journey, I am still a law student, I would say. So, I just did my master's from Queen Mary University of London, and it was there that I realized that I'm interested in energy law and environment law. Suppose that I've always had this flair and knack of writing, so I started off writing on environment and energy law issues. So that's what I've been doing. I've been writing a lot. And other than that, I call myself an equestrian. I'm a polo player and painter. So that's about it. With all these, I'm trying to explore aspects of my life and my surroundings. That's really beautiful. So Pankaj sir ने आज मेरे को तो right लोगों से connect करवाया because I am also pursuing law and of course I'm a journalist. So I am glad to meet you guys today and it's going to be really interesting. So now coming on to the topic for the day, that is that understanding COVID-19. So I would like to begin from Pankaj sir that what are the insights from the medical point of view एंड क्या अप्रोच रही है डॉक्टर्स की, कुछ इस तरीके की स्टोरीज भी आपने आई एम श्योर विटनेस करी होंगी मेडिकल फील्ड को लेकर कि किस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया जा रहा है, डील किया जा रहा है. सो वी वुड लाइक टू गैदर सम इनसाइट्स फ्रॉम योर साइड. प्रिया जी, हम लोग की जो ये ICMR यूनिवर्सिटी है, ये टॉप यूनिवर्सिटी है इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, और वी हैव आल्सो बीन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. हम उनको भी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं कि कोविड रिलेटेड पैंडेमिक को कैसे मैनेज किया जाए. इनफैक्ट हमारे चेयरमैन डॉक्टर गुप्ता और हमारे ट्रस्टी हैं डॉक्टर अग्रवाल, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी. तो वो हेल्प कर रहे हैं पूरा इसको कैसे मैनेज करना है. और इसमें जो सबसे बड़ा इशू यही आता है, लोगों का सपोर्ट, लोगों को सेंसिटाइज करना कि भाई असली में ऐसी चीज नहीं कि हो गया उसके बाद वो अनलॉक हुआ तो सब लोग फिर अपना वीडियो बना के निकल आए, अरे भाई हो गया, सब हो गया. तो लोगों को ये समझाना कि ये चीज यहाँ पे आई है, इसमें भी टाइम लगेगा और हमें सावधानी ही हमारा बचाव. उन्होंने आजकल ये भी कार्य किया है कि कई एक अलग अलग तरह के जो सोशल अवेयरनेस कैंपेन है उसके लिए भी हम लोगों ने उनको क्रिएट किया है, और उनको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी उसके साथ मिलकर के काफी इस तरह का प्रयास जो है वो जारी है. इन सारे दौरान में ये जरूर देखा गया है कि डॉक्टर ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, इवन जो लोग हेल्थ को मैनेज करते हैं, उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है. और इसमें ढेरों लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने घर ही नहीं जा रहे हैं, बेचारे लगे हुए हैं पूरे. और उसके बावजूद आपने सुना होगा मीडिया में काफी आता है कि कोई कह रहा है कि नहीं भाई तू घर खाली करो, आपकी वजह से हमें कोरोना ना हो जाए. राइट. काफी जो इनसेंसिटिव टाइप के भी चीजें हमें सुनने को आती है. और कमल जी ने मेरे को 2-3 स्टोरीज बताई थी, बहुत ही वो मार्मिक स्टोरीज है, वो खुद ही बताएंगे. मैं तो जो कमल जी बात कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे होता ना वो सावधान इंडिया वाला होता है कि वो चोटी वाले एक बाबा आते हैं, ये हो गया उस तरह से. कभी शायद कमल जी ऐसे कभी भाषण वगैरह. that is the way, our way to gain some kind of attention. हाँ पहले, लेकिन कमल जी अब इतनी अच्छी कंपनी चला रहे हैं, इनका भी 10 साल का हुआ था सेलिब्रेशन में. एवरीबॉडी, हर एक इनका सम्मान करते हैं. तो कमिंग बैक कि ये जानना बड़ा ही आवश्यक है कि इन सबको, एक होता है पोस्ट कोरोना, लेकिन पोस्ट कोरोना का वक्त अभी काफी आगे है. अभी हमें बात करनी है को कोरोना की, कि कोरोना के साथ रहते हुए हम कैसे अपनी आगे की प्लानिंग करें. अभी बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं वो भी सारी अभी खाली अनुमान के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि अभी भी लोगों को नहीं पता. बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट भी अपने एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि साहब ये होने वाला है, वो होने वाला है. लेकिन हम ये जो लगातार एक्सपीरियंस से देख रहे हैं कि वो सारे अनुमान भी काफी कुछ के सही नहीं साबित हो रहे हैं. तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है कि हम लोग अपना संयम बनाए रखें. अपने लेवल के जो हमारे प्रयास हैं, चाहे वो हाथ को धोना, टच अवॉइड करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, जब बच्चों या बड़े लोगों के पास जाते हैं तो एक विशेष एहतियात के साथ जाना. तो ये जो बेसिक चीजें हैं, और साथ में हमने ये देखा कि बहुत सारी चीजें हम लोग पहले जानबूझ के मीटिंग करते थे, ये सब काम करते थे, अब वो सारी चीजें काफी ऑनलाइन होने लगी. जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी मॉड्यूल को ऑनलाइन बना दिया. तो इस
पूरे संघर्ष के माहौल में हमने देखा कि हमारी जो क्षमता है और हमारी जो अंदर की कैपेसिटीज हैं बहुत सारी हैं। अब जैसे हमारी कन्वोकेशन हो रही है 4 जुलाई को, तो भी हमने इस बार ई कन्वोकेशन कर रहे हैं। That's beautiful. हाँ, इस तरीके से बड़े सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे पहले हम लोग मीटिंग बुला ले, मीटिंग में इधर का डिस्कशन हो गया, अब आप क्या है कि सीधे फोकस्ड वे में एजेंडा भेज रहे हैं, आपकी जूम मीटिंग हो रही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी गुड। लेकिन डॉक्टर्स का जो है उनके साथ जो टोटल व्यवहार रहा है, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी ने पहले फूल वगैरह बरसवाए, सब हुआ, लेकिन ये सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑनगोइंग। क्योंकि जो हमारा लाइफ सेवर है उसके प्रति एक सम्मान और एक जो ग्रेटिट्यूड की भावना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मुझे जान के काफी खुशी कि इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर ही नहीं, लेकिन जो साथ में नर्सेज हैं, एएनएम हैं, आशा वर्कर्स हैं, इवन जो हमारे संस्थान से जो बच्चे निकलते हैं जो हेल्थ मैनेज करते हैं पूरी, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या और बहुत सारे जो कार्य होते हैं, क्वालिटी देखना, बहुत सारे कार्य होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही में बहुत सारे लोगों को मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि जो लोग घर में बैठे रह गए उनको दिक्कत है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कुछ मतलब कब तक इसका हम लोग कोई सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे? जैसा कि हमने बोला कि सब अनुमान ही लगा रहे हैं इस वक्त एंड कुछ श्योरिटी नहीं कोई दे पा रहा है। सो व्हाट इज द टेक ऑफ यू एंड योर इंस्टीट्यूशन? लाइक आप क्या कहना चाहेंगे इस रिगार्डिंग? एनी एनालिसिस? देखिए, इस समय कोई भी एक जानकारी एक आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं दी जा सकती है। हालांकि हम लोग इसके मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह सारी करी गई है, लेकिन काफी कुछ जो चीजें गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि ये डिपेंड ये भी करता है कि लोगों का व्यवहार कैसा है। तो हम लोग तो उसी विषय में चर्चा कर सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, लेकिन सोसाइटी कैसा बिहेव करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे नहीं करेंगे, तो उन सबसे जो इसका फर्दर पैंडेमिक आगे जो बढ़ने का विचार है, और आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और हम लोग का ये भी है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से रहने वाले कम्युनिटी हम लोग शायद नहीं है। ये जरूर है कि जब हम अलग विदेशों में जाते हैं तो बहुत डिसिप्लिन से रह लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर एक आदमी को हर चीज की फ्रीडम है। इस वजह से हम एक एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक जरूर बात है कि लिविंग माइंडफुली नाउ, अपने लेवल पे जो कंट्रोल में है, जैसे आपको मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आप उन्हीं ऑनलाइन मॉड्यूल्स बनाओ, उस तरीके से अपने आप को तैयार करो। आपके वर्क अगर ऑफिस खुल गए तो आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए कार्य करो। लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा गया है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए all the precautions are required right now and we need to maintain the balance. क्या है कि पहले के एचआर इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एचआर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, यू गेट व्हाट यू मेजर। तो अब आप कोई आदमी घर में काम कर रहा है, आप उसको लॉगिन की बेसिस पे रिवॉर्ड करोगे या आप उसके डेली बेसिस की प्रोडक्टिविटी करोगे, ये सब कई एक अलग अलग तरह के इश्यूज हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। I'll say a sensitive heart is needed at this time. To quote your words, I would say that a sensitive heart is required, right? दूसरों को समझिए और उसके साथ साथ एक स्टेबल और सेंसिबल माइंड की भी जरूरत है कि आप प्रिकॉशंस भी लीजिए, भावनाओं में बह मत जाइए, पूरी तरह अपना भी ध्यान रखिए। नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन उसके लिए दूसरों से पहले अपना भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। कोट करी ये सेम चीज आपकी। एक लास्ट में एक चीज ये कहना चाहूंगा, इस समय ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस की तरह नहीं रन करना चाहिए, इसको एक फैमिली की तरह रन करना चाहिए। तो अब आप जब लोगों का इस समय में ध्यान रखोगे, वो उसको हमेशा लोग याद रखेंगे और उससे आप बहुत गुना रिटर्न आप अपने आप निकाल लोगे। लेकिन इस टाइम आप अगर सोचोगे नहीं साहब ये फायदा हो रहा है, ये कट है, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हर एक ऑर्गेनाइजेशन सर दैट ये सिचुएशन ही जो क्रिएट हुई है मेरे हिसाब से, तो इट्स अ नेचर्स वे टू टीच अस दैट ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट सर्विस। अब आप अगर कोविड की सिचुएशन ही देखिए तो इट्स अफेक्टिंग एवरीबडी इन द सेम मैनर। नोबडी इज रिच टू इट, नोबडी इज पुअर टू इट, and nobody has a status which is like a king status or a beggar status.
हर एक को एक ही मैनर में इफेक्ट कर रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, इंडिया में रहता है या फिर यूएसए में रहता है। तो वो इक्वालिटी सिखाने के लिए और यूनिटी सिखाने के लिए एक तरह से नेचर का भी ये स्पिरिचुअल मैसेज है, तो लोगों को समझना चाहिए मेरे हिसाब से। ईश्वर ने बता दिया कि मैं हूँ, जी मुझे तुम जितना भी कर लो, मुझे तुम हल्के में नहीं ले सकते। जी, डेफिनेटली सो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड राइट नाउ एंड थोड़ी सी पेशेंस एंड हैप्पी थिंग्स आर श्योरली गोइंग टू कम। तो कहते हैं ना कि अगर अच्छी एंडिंग नहीं हुई है तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी एंडिंग तो हुई नहीं है, तो इसलिए पिक्चर बाकी है। अच्छी एंडिंग ही होती है जब हमेशा होती है। सो आपसे इतना सारा इंसाइट लेने के बाद मैं चाहूंगी कि मिस्टर कमल नारायण अपने इंसाइट शेयर करें हम सबसे। एंड सर, व्हाट इज योर टेक ऑन द सिचुएशन? श्रेया जी, कोविड-19 के बारे में जितनी ज्यादातर बातें हैं वैसे पंकज जी ने बता दी हैं उस पे, और उन्होंने वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं जहां पर पब्लिक हेल्थ के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं, और उन्होंने भी इस पर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हम कब कोविड-19 के इस संकट से या इस क्राइसिस से बाहर निकल के आ पाएंगे। As far as my talks with other people are concerned, मैं दिन भर डॉक्टरों से बात होती है मेरी, वो डॉक्टर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके से मुझसे ज़्यादा समझते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। सो जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी हमें कम से कम अगले 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी हमारे आसपास बदलने वाला है, एक्सेप्ट फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस which need to get stabilized. As we are seeing that lot of medications and medicines are being experimented, और भारत सरकार भी बहुत तेजी से कई सारी मेडिसिन्स को इमरजेंसी तौर पे अलाउ कर रही है। फॉर एग्जांपल द रिसेंट वन जो उन्होंने किया फेविपिराविर को किया, और कई सारी मेडिसिन को कर रहे हैं। तो मेडिसिन के सॉल्यूशंस बढ़ने से और ऑप्शंस बढ़ने से व्हाट वी विल सी इज द दैट द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 विल रिड्यूस ओवर द पीरियड। वी आर ऑलरेडी वेरी फॉर्चुनेट कंट्री कि हमारे देश में नंबर्स के अकॉर्डिंग जो मौतें हैं वो कम हैं, लेकिन जितनी भी हैं हमारी काउंसिल का मानना है, अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो एक भी मौत बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं और भविष्य है वो जुड़ा होता है। तो एक मौत भी अनएक्सेप्टेबल है अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अभी हम लोग वी हैव सीन so many deaths happening, you know, this is incredible. We have reached to, you know, almost 5 lakh number in terms of cases, और अगर उसका 2 से 3% डेथ रेट भी आप देख रहे हैं तो वो भी बहुत सारी फैमिलीज को तोड़ चुका है अभी तक। तो ये इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की तो है, सरकारों को और अच्छा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कई बार देखते हैं कि सरकारें अपने डिसीजन दिन में 3 बार बदलती हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ है जो उनको और अच्छे से कर सकते हैं। और लॉकडाउन के जो 4 लॉकडाउन या 5 लॉकडाउन हमने देखे, ऑलमोस्ट 60 से 70 दिन ऑफ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वी सॉ was a very good opportunity for every government and everyone to prepare for the future. तो शायद बहुत सारे लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने शायद कमी भी छोड़ दी, इसका खामियाजा भी हम देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मेरा ये मानना है कि सरकारें अकेले सब कुछ नहीं कर सकती हैं, लोगों को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। और पंकज जी भी वही बात कर रहे थे कि हमें अपना बिहेवियरल चेंज जो है बहुत बहुत केयरफुली इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने उस पे। आपने बताया कि आप पिछले 4 महीने से अपने घर से बाहर भी निकले हैं, तो दरवाजे तक ही नहीं गई मैं तो। हाँ, तो लेकिन ये अच्छी बात है कि आप घर से बाहर निकले बिना आप दुनिया से जुड़ रही हैं, उनको सही अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दैट्स वेरी गुड एफर्ट एंड दीज आर द वर्क
if people can manage, but we understand कि सारे लोग हमारी तरीके वेबिनार्स में बैठ करके सिर्फ बातें करके अपना घर शायद ना चला पाए. Everybody has a different kind of responsibility, I must say. तो But उनके then ये उन लोगों के लिए सर जो unnecessarily बाहर जा रहे हैं being a rebel, जिनका काम है, जो अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो तो अपनी प्रिकॉशन के साथ बाहर जाकर. अगर वो रिबेल हैं तो किस चीज के लिए रिबेल है ये पता नहीं है, क्योंकि वो रिबेल किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी से रिबेल हो रहे हैं. तो उनको अपना अगर किसी को ये लगता है कि नहीं अब मैं इससे आगे अपने घर में नहीं बैठ सकता, अब मैं बाहर जाऊंगा, तो अगर ऐसी क्रांतिकारी भावनाएं उनके अंदर आ रही हैं तो क्रांति उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदायक है, दूसरों के लिए तो है बट उनकी जिंदगी के लिए ज्यादा नुकसानदायक है. तो ऐसी भावनाएं ना रखें लोग, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके घर पे रहें, और अगर घर से बाहर किसी भी तरीके जा रहे हैं तो जितनी वो प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाने से लेकर के और अपने को पर्सनल हाइजीन, सैनिटाइज करना हैंड्स को या कुछ भी, उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि इस समय हाइपर सेंसिटिव होना भी ठीक है और हाइपर कॉन्ड्रियाक होना भी ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज्यादा डरे रहेंगे और थोड़ी ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे तो इससे नुकसान नहीं हो रहा, इससे बेनिफिट ही हो रहा है. हाँ, यहाँ पे जैसा कि आप लोग दिल की आवाज के प्लेटफॉर्म पे हैं आज, तो मैं थोड़ा शेरो शायरी भी करती हूँ, और इससे मुझे एक अपना शेर याद आ गया कि पहले कहा जाता था कि जो डर गया वो मर गया, ठीक है, बट अब थोड़ी कहावत चेंज कर दिया मैंने ये लिखा है कि जो डर गया उसका जीवन सुधर गया. तो जैसे डर की बात आपने करी, थोड़ा सा डर के अगर रहेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि पहले हम लोग डरे हुए थे. आपने देखा जब कोविड का सिचुएशन आया था नया, एवरीबडी वाज लाइक हर 2 मिनट में अपने हाथ धो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं बाहर, एंड इट वाज अंडर कंट्रोल. फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन जैसे ही हुआ, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, द केसेस आर डबलिंग ट्रिपलिंग एवरी डे, every 24 hours we are just having an increase. So अच्छा समझदार इसी में घर के रहिए. उसके लिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि वो इसलिए हो रहा है कि हमको ये लगता है कि जब रेडियो और टीवी ने हमें बता दिया कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया, तो हमें लगता है कि कोविड चला गया, आया था, घर के बाहर घूम रहा था, लॉकडाउन खत्म हो गया, वो चला गया, उसको डिपोर्ट कर दिया है हमने, अब वो नाउ इट विल नॉट एंटर इन दिस कंट्री अगेन. ये जो सोच है, और ये सोच पहले से डेवलप हो रही थी. अगर आप देखें तो लॉकडाउन फर्स्ट जब 21 डेज का प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, तो सोशल मीडिया में, ये जो सोशल मीडिया जैसे अब यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, पूरी एक यूनिवर्सिटी है और चैलेंज है पंकज जी जैसे जो है एकेडमिशियंस के लिए कि अब यूनिवर्सिटी बन गई है व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप में ये था कि लोग साइंटिस्ट हो गए थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए थे, चेन रिएक्शन बताते थे कि ये 21 दिन की चेन है, 21 दिन से जैसे ही 22वां दिन आएगा कोविड खत्म हो जाएगा. फिर उनको रियलाइज हुआ कि 21 दिन के बाद अभी तो महीने भर का और बढ़ा दिया गया लॉकडाउन, फिर और बढ़ा दिया गया. तो ये सोच ही गलत है. ये एक महामारी है, एक पैंडेमिक है, ये जो है लोगों तक में बहुत तेज फैल रही है, लोगों के अंदर है, और इसको इतनी जल्दी खत्म किया जाना पॉसिबल नहीं है. तो प्लीज अपना ख्याल रखें, व्हाट्सएप के हिसाब से ना चले. च्यवनप्राश खा लेने से शायद आप जो है इम्यून नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए च्यवनप्राश खाइए, वो अच्छी चीज है. बट सिर्फ च्यवनप्राश खा लिया कि मैं तो सुबह रात को हल्दी वाला दूध भी पीता हूँ, सुबह च्यवनप्राश भी खाता हूँ और दोपहर काढ़ा पीता हूँ, तो मैं कहीं पर भी निकल सकता हूँ, ये शायद अहम है और इनको रुकना चाहिए. So, मैंने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सारे एक्सपर्ट्स को बुला लिया और उनके मुंह से निकलवा दिए फैक्ट्स, ताकि जनता थोड़ी सी अवेयर हो जाए जहाँ पे प्रोग्राम पहुंचे. जैसे अब मीडिया की बात करी आपने, सो वी हैड प्रोफेसर केजी सुरेश, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, एंड उन्होंने भी ये बताया कि जैसा आपने कहा कि ये फेक न्यूज और व्हाट्सएप वाली न्यूज पे बिलीव मत रखिए, गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स हैं उन पे आप जाइए और वहां जब कुछ पब्लिश होता है तब यू शुड एक्सेप्ट इट रादर देन डूइंग इट. एंड ये च्यवनप्राश वाली बात भी, मतलब वी हैव आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स लाइक पंकज सर एंड एवरीबडी, सो दीज काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स वुड गाइड यू टू द राइट डायरेक्शन rather than just listening something और कोई ऐड पढ़ ली और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, यू आर सेफ. आप अपनी दुश्मन खुद बन रहे हैं. So that is really insightful and I would second your thoughts and I would appreciate कि आपने अपनी knowledge हमसे share करी यहाँ पे.
So thanks a lot for that. अन्विता, आपका टेक जानना चाहूंगी सेम इशू पे, कोविड-19 की जो सिचुएशन है, आपकी क्या इनसाइट्स रहे हैं और आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं? And first of all, there were a lot of people who are going out of their houses, but they're essential workers. I mean, my father being one of them, he's going for work every day. And we are taking proper care and responsibilities, whichever we need to, in order to stop the spread. But as soon as the lockdown lifted, as Narayan sir rightfully pointed out, people are thinking that, oh, Corona was here and now it is gone. And people are literally going out. People are going out, flocking to even malls and even this small cafes which have opened in my city all over. And it's a Right. personal experience. I've seen people without protective gear there. There are people flocking to the grounds, to the polo grounds. I myself was there, but thankfully there was proper precautions being taken, so it wasn't really a big deal there. What has affected me personally, really during this situation, is a lot of people are battling mental health issues, including those at the front line, and that includes the doctors. So I've got in touch with a couple of people who are in the medical profession personally, and I've heard their take on the same. And they are legit suffering from issues of maybe even anxiety or depression or even moral injury. So that is something which is kind of ignored in the recent times, but has become an issue of late. That's very true, and I would like to add on the point that I have also seen this thing that the lockdown relaxations have been given, and again people are gathering, they are partying, but they should understand this thing that COVID is still not over. Like cases are rising every day. So why all this is happening? But on the flip side, if we are completely socially distant, mental health issues are also on the rise. A number of European countries have physical distancing. They're still allowed to go out to eat, but they maintain a physical distance. They're allowed to go out even party, but maintain a physical distance. So that is not. But we are not socially distant. We are not socially distant, I would say. We are just physically distant. Social distance, like we are still communicating. We have a family around. So how can we be socially distant? Physical distancing in the true sense is also not being taken care of, and also because of the population here, you cannot really have just a physical distancing. You cannot have that kind of distance when you are on the streets. You have to have social distancing out here, and that is creating mental health issues. And to be honest, none of them are being followed in the strict sense of the term. But it's not really to be blamed on the people. That's what I feel. We don't really expect a lot from people who have not really been educated on the same subject. True. So guys, I would just say after gathering your insight that don't be a rebel, and this is the situation that we need to take care of each other. अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप सिर्फ खुद के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए भी बहुत मदद कर रहे हैं. तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है व्यस्त रहिए, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तभी ऐसे रिबेल वाले थॉट्स भी आते हैं. So it's really amazing to connect to all you beautiful people today, I must say, and I really feel overwhelmed to gather so much of knowledge from you, positive energies, of course. And now, at the end of the session, like I would like to take an inspirational message for the audience. What would you like to convey them? What kind of mantras, tips from your side? So, beginning from Pankaj sir, what would you like to say to the audience? जी आपने ऑलरेडी बोल दिया कि बिल्कुल व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ये बहुत अच्छा मैसेज है. मैं तो देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप दुनिया को छोड़ के अपने आप से जुड़िए, क्योंकि दुनिया में हर आदमी हर एक से जुड़ने की कोशिश करता है कि ये है वो है, इससे ये मिलूं, कनेक्ट हो जाऊं तो ये फायदा है. लेकिन लाइफ की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं वो तब होती है कि जब आपके माइंड में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. यू आर जस्ट देयर. जिसमें डूइंग और हैविंग हट करके डूइंग के ऊपर जो चीज होती है वो होती है बीइंग. तो जब आप बीइंग के डोमेन में ऑपरेट करते हैं, और उसके लिए एक्सेस होने की यही बात है कि जैसे आप मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस करें, और इन बारे में भी विचार करें कि मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों हूँ, और ये जो पैंडेमिक आई हुई है इसका मेरे लिए क्या संदेश है. एक्चुअली जितने भी पूरे वर्ल्ड के लिए संदेश है कि मनुष्य का जितना ही बड़ी प्रोग्रेस है, कुछ भी क्यों ना कर ले, उसके ऊपर एक सुपर पावर है. और एक जैसे होता है कि अभाववश या प्रभाववश
आदमी लगा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में, लोगों को एक्सप्लॉइट करने में, और बाहर की चीजों पे फोकस जो रहता है उसकी कभी पूर्ति होने वाली नहीं है, जी क्योंकि एक चीज होगी फिर दूसरी चीज पैदा होगी फिर वो चलेगा। इसलिए हमारे इंडिया में जो सिस्टम था वो था इनर जर्नी। जब आप अपने आप को और बाकी सब चीजों को समग्रता में स्वीकार करते हैं और आप कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और पूर्णता के भाव के साथ फिर आपको जो एक्शन नजर आता है आप वो एक्शन लेते हैं, और वो भी ऐसा एक्शन जो सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, जो था ना वसुधैव कुटुंबकम वाला लेते हुए जी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सारे जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर लाइट है वही सबके अंदर लाइट है। इसलिए किसी और को अगर तुम उसको परेशान कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम अपने आप को ही कर रहे हो। किसी और का अगर भला कर रहे हो तो अपने खुद का भला कर रहे हो। लेकिन जैसे एयरप्लेन में भी जब आप जाते हैं तो एयर होस्टेस क्या कहती है कि किसी और का मास्क लगाने से पहले पहले अपनी खुद की आप सहायता करें। इसलिए अपनी ही जिंदगी को पूरे प्रेम से और एक्सेप्टेंस के साथ भरें, और फिर देखिए मेरे हाथ में क्या है, और Right. उन चीजों पे फोकस करें टोटली, और उससे हर चीज अपने आप सेट हो जाएगी। और उसमें बहुत ज्यादा एक अननेसेसरी की चिंता करना, अरे मेरा क्या होगा, ये होगा, और अपने आप में जैसे था ना कि अर्जुन जब गया तपस्या करने तो उसका फोकस क्या था कि दिव्यास्त्र इकट्ठा करे। उसी तरह आज के टाइम में लोगों के पास अगर टाइम है तो जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है, बहुत सारी ऑनलाइन चीजें सीखने वाली हैं, अपनी म्यूजिक है, हॉबी है, उन सब चीजों को ध्यान देने का वक्त है। फैमिली के साथ एक नई चीज क्रिएट करने का वक्त है, अपने एम्प्लॉइज और को वर्कर के साथ करने का वक्त है। लेकिन ये उसी व्यक्ति को दिखेगा जो एक रेस्टफुल है, जो रेस्टलेस माइंड वाला आदमी है, उसको खाली बस ये दिखेगा बस ये भाग लो। लेकिन एक रेस्टफुल आदमी को दिखेगा विश कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है, और रेस्टफुल भाव से वो उन चीजों को अचीव करे। मेरा तो की संदेश यही है। वेरी ट्रू सर। सो जरूरत है कि कंपैशनेटली जिए हम लोग। सर यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगी आपकी ही नॉलेज से लेकर एक थॉट अपना, दैट इज आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड कंपैशन। सो हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं पैशनेट रहिए, पैशनेट रहिए। पैशन मीन्स डूइंग समथिंग विद यू नो अटमोस्ट अपना, मतलब उसमें लग जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, पैशनेटली करो कुछ। बट कंपैशन उससे भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। पैशन में जरूरी नहीं है कि आपका इन्वॉल्वमेंट हमेशा हो। आप भाग रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, बट क्या आप उस सिचुएशन को फील कर रहे हो? पैशन फिर भी वो है, बट कंपैशन एक नेक्स्ट लेवल है दोस्तों, जो है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आप इन्वॉल्व हो। पैशन प्लस इन्वॉल्वमेंट इज कंपैशन। सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू बी कंपैशनेट, जैसा कि पंकज सर ने भी प्रमोट किया कि आप जो भी करें एक इम्पैक्ट क्रिएट करिए सब पर, और खुद के लिए एक्चुअली वो काम करिए। देयर शुड बी रिफाइनमेंट इन योर स्किल्स, सो ग्रो, compete with yourself each day. एंड एक और थॉट मैंने जो अभी 2 दिन पहले ही कंपोज किया था, वो आपने हमें बताया कि अभी इनवर्ड जाइए, अपने आप को जानिए, सो दैट इज द ओनली वे आउट। तो इसमें था कि द ओनली वे आउट इज द वे इन। So these kind of mantras we should keep in mind, and the beautiful message Dr. Pankaj Gupta has shared with us, which is a reminder for all of us. So लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स ना बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, जो मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये लोग होते हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। He is one person which always reminds me of the connection between logic and belief. तो लॉजिक, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी आई मस्ट से साथ साथ चलती है, और हमें ये याद रखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस। बहुत अच्छा लगा आज आप हमसे जुड़े, अपना समय निकाला और इतनी अच्छी बातें हमें बताई। सो अब मैं कमल सर से जानना चाहूंगी, मिस्टर कमल नारायण, आपका क्या इंस्पिरेशन मैसेज है ऑडियंस के लिए आज हमारी? श्रेया जी, जहाँ पंकज जी ने नेचर के प्रति अपने अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों, अपने पास जो मिला है उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की बात करी है, मेरा ये कहना है कि अपने लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए, ईश्वर के लिए, नेचर के लिए तो आप ग्रेटिट्यूडफुल रहें, थैंकफुल रहें। बट इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है, हमें अपना ग्रेटिट्यूड जो शो करना है वो अपने उन लोगों के लिए करना है जो कोरोना और कोविड-19 की इस लड़ाई को फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं।
और वो हमारे डॉक्टर्स भी हैं, वो नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, वो हॉस्पिटल क्लीनिंग के स्टाफ भी हैं, और इनके पीछे का एक पूरा इकोसिस्टम जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो उनके प्लांट्स में लोग दवाएं बना रहे हैं, जो लॉकडाउन के समय जब हम घर पे रह रहे थे उस समय भी जो इस तरीके के काम कर रहे थे, कई बार पुलिस की जो बंदिशें थी उनको भी झेल रहे थे, और उसके बाद भी अपनी जगह पर जाकर के साइंटिस्ट जो लैब में लगातार रात दिन मेहनत करके शायद किसी वैक्सीन की निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मेडिसिन को लेकर, और न सिर्फ हम सभी बल्कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं सत्येंद्र जैन, उनको खुद को कोविड-19 हो गया, तो अगर वो हमारी तरीके घर के अंदर बैठे रहते तो शायद उनको ये डिसीज नहीं होती, लेकिन उनके लिए घर पे बैठे रहना इज नॉट द सॉल्यूशन। उन्हें बाहर निकल करके इस लड़ाई को फ्रंट लाइन पे लड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे सारे जितने अधिकारी हैं, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने में और उसको पॉसिबल बनाने में, we need to be grateful for them. They are really putting their heart, their soul, their family at stake, their life at stake for us. We need to be thankful to them, grateful to them. और इसी के लिए ISW काउंसिल भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 1 जुलाई देश में डॉक्टर्स डे की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वी आर स्टार्टिंग ऑन दैट डे एंड फॉर नेक्स्ट 7 days 60 hours लॉन्ग ग्रेटिट्यूड मैराथन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वेब चैनल्स पे, जहां पर वी आर रिक्वेस्टिंग everyone, every part of the society to share their messages, their love, their blessings, their thankfulness, their gratitude for these corona warriors, these doctors, these health guardians. तो आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना रिस्पेक्ट, अपनी भावनाएं इन डॉक्टर्स के लिए, इन हेल्थ वर्कर्स के लिए शेयर करें। आप लोग ISW काउंसिल के पेज में जाके देख सकते हैं, ये फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो इससे क्या होगा कि इन सारे लोगों को जो फ्रंट लाइन पे हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको सोशल और मोरल सपोर्ट मिलेगा। जैसा पंकज जी ने शुरुआत में ये बात बोली थी कि जहां वो लोग अपने परिवार को स्टेक पर करके काम कर रहे हैं, कई बार देखते हैं कि सोसाइटी में लोग उनको एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। तो ये सारी चीजें उसको डाइल्यूट करके और उसको उन्हें उनके अंदर ज्यादा मनोबल, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा एंथुसियाज्म बहुत जरूरी है इस समय कि उनका जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। तो इवन अन्विता also said about the mental health of these people. तो हमें उनकी मेंटल हेल्थ तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम उनकी काम को अप्रिसिएट करते हैं, और वो अपनी तरफ से शायद कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और मुझे ये लगता है कई बार मीडिया में नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, बट मेरा मानना है, और पंकज जी ने कहा था कि कमल जी खुद स्टोरी सुनाएंगे, मैं एक ये बता दूं कि मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि कोई भी डॉक्टर जब उसका पेशेंट मर जाता है तो उस पर खुश नहीं होता, किसी को खुशी नहीं होती। एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं इसमें आपको बता दूं, पंकज जी को बहुत मार्मिक लगा था, बहुत टचिंग लगा था। हमारा एक अस्पताल है पटना में, वहां पर एक पेशेंट का जो है आईसीयू में एडमिट था और उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट के बाद नॉर्मली सीपीआर दिया जाता है, और सीपीआर में आपको मालूम है कि वी हैव टू पंप द चेस्ट एंड टू मेक टू रिवाइव पर्सन। तो वहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स थे, वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑब्वियसली आपको बॉडी पर्सन के ऊपर माउंट होके करना पड़ेगा ये। तो अटेंडेंट्स ने या किसी फैमिली मेंबर ने देखा और उसने एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर के मीडिया बना दिया, जिसकी हेडलाइन बनी कि लाश के ऊपर चढ़ करके कूदते रहे डॉक्टर्स। तो ये इस तरीके की चीजों से हम जो डॉक्टर्स का
जो प्रोफेशन है उसको मलाइन करते हैं, उसको जो है बदनाम करते हैं। तो पहले समझना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, या ये वीडियो आया है तो मीडिया वालों को भी समझना चाहिए कि क्यों आया था, इसका रीजन क्या था, पता करना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान रखकर के सिर्फ मीडिया के कहे पे ना जाएं, अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मीडिया का कोई जर्नलिस्ट आपको क्योर नहीं कर सकता, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब यही चीज है कि हम लोग एज अ जर्नलिस्ट भी कहते हैं दैट मीडिया एंड द मीडिया पीपल एंड जर्नलिज्म दे आर द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास वो क्षमता और शक्ति है, जैसा कि आप भी जानते हैं, कि हम किस तरीके से लोगों के माइंड को शेप कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म फॉलो करें, और हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे वो तो जनता चेक रख सकती है, तो उनको भी रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। सो हियर कम्स द वेरिफिकेशन वाला चीज कि एज अ ऑडियंस आल्सो यू शुड वेरीफाई एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपर्ट्स के पास जाइए जो लोग एक्चुअली नॉलेजेबल है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। और हेल्थ के मामले में अभी सिर्फ WHO की बातें सुनिए और सरकार की। जी बिल्कुल। व्हाट्सएप की मत सुनिए, अपने फ्रेंड्स की मत सुनिए। फ्रेंड्स के पास जरूरी नहीं है कि जानकारी पूरी हो। WHO बहुत सारी इंफॉर्मेशन सारा दिन स्प्रेड करता है, गवर्नमेंट्स करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, उनकी बात माने और डॉक्टर्स की बात माने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नाता जोड़े रखिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बट अपनी नॉलेज के लिए और डिग्री के लिए आपको WHO के पास जाना चाहिए। Okay, so after gathering a lot of inspiration from your side, I would like to have some positivity and inspiration from Anvita. So, what is your message to the audience for the day? Well, I'm going to quote Pankaj sir here: compassion, that is prime important in this situation, and gratitude for not just the medical professionals, but also every other essential worker who's out there in the front line and still keeping the system alive. Coming to medical professionals, they're forever, they're perpetually torn between the Hippocratic oath, years of training, and maybe the realities of profit making. And on top of that, we have a disease which doesn't really have a legit cure. So it's time we showed them a bit of gratitude while we keep ourselves sane and them sane as well. Thank you, Anvita. You really said it right. That this is the time to pay gratitude for the people who are actually working on the field for us. हम लोग safe हैं क्योंकि कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत जरूरत है कि हम लोग उनको इंस्पायर करते रहे। जैसे कमल जी ने भी कहा that we also need some kind of inspiration. Everybody, each one of us needs appreciation because that is the fuel for the next work. So यही मोटिव था कि हम लोग भी आज यहाँ पे जुड़े और एक ग्रैटिट्यूड हम पे करना चाहते हैं अपने डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, because they are our saviors and heroes. So I would really thank you for connecting with us today, for sharing your insight, your inspiration, and I would like to thank the audience, lovely and supportive audience as well, जिन्होंने हमसे जुड़कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया कि हमें कोई सुन रहा है और समझ रहा है। तो इन बातों को सिर्फ सुनिएगा मत, अपनी जिंदगी में उतारिएगा भी, वरना कोई फायदा नहीं है डिस्कशंस का और टॉक्स का। So thanks for connecting to us today, and I wish everybody a safe stay at their home. और यहाँ पे मैं क्लोज करना चाहूँगी एक शेर अर्ज करके, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। तो जैसा हमने अभी बात करी सभी लोगों ने कि हम लोग काफी भाग रहे थे। पंकज जी ने हमें बताया being spiritual, being at peace, looking inside of the way out. कमल सर ने भी हमें यही समझाया कि yes, we need to take care, we need to have patience right now and acceptance. And अनवता आपका भी यही टेक है सेम। So इसी में एक चीज रखी थी मैंने कि पैसा आप मटेरियलिज्म को ले लीजिए, पैसा कुछ भी है, अप्रिसिएशन है, स्टेटस है, मनी इन काइंड, कैश, एनीथिंग। सो पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए। So this is the kind of thing that we should keep in mind, that everything in balance is beauty. किसी भी चीज की अति हो जाएगी तो वो पॉइजन हो जाएगा, और वो पॉइजन हम आज देख ही सकते हैं सिचुएशन के काइंड में। So stay at home, stay happy, stay safe, and definitely the sun is going to shine again very soon. Till then, keep communicating, keep inspiring each other, and keep connecting. Thank you all for joining.